I guess for everybody, life is a roller coaster. Uh, but luckily my ride has been just fun. I would say I don't regret any part of it. A lot of people say, "Oh, I had this problem, my childhood, whatever." I think I've been a very flamboyant kid as a child. I topped my school. I'm from Scholar High School, Colaba. I topped my uh, college, which is Sydenham. I did my ICW. I did my chart accountancy. But I was a very fashionable kid. I was very confident from childhood, and that's only thanks to my mom and dad, I would say. Um, Basically, I was not a bookworm. I would just study my books like a storybook, and the next day I would go and write. And I used to come up with flying colors. I used to be great in academics, sports. I remember I used to be great in elocution contests, everything. And I think all my teachers were very fond of me, but I hated maths. I remember my maths teacher, she had like, I don't know, maybe she was homophobic or what. I just hated, and she hated me back equally. Um, Obviously, yes, there are times, obviously, I was a little effeminate kid, so people say pansies, is that, but I was not a very sensitive who come home crying and say, oh, mommy, this is it. I mean, I was like, okay, fine, this is the way I am, take it or leave it. That's what my attitude has been. And I think college, yes, there was a lot of discrimination when I was in Sydenham, but luckily, I think me being fashionable, and I used to model, if you see my pictures, get a hard act. So I used to model when I used to look like a guy, but it was a very trendy looking guy, very flamboyant again. And Yash Birla was my classmate. So I think we were the two kind of spoken about people that time. But luckily, I used to take part in the fashion shows, do choreography, do hair and makeup for people that time without having a practical know-how of hair, because that was a flair which I had from childhood naturally. But my father was very adamant that he wanted me to, study, and he always had this dream that I should become a chartered accountant. So I did work as a CA for 1 year, and imagine from town, Chapati, I used to go to Andheri to work for 8 months. It's horrible, and not. I don't think the travel literally killed me because luckily my father gave me a car wrap. But the atmosphere in the office with those so-called straight people, they call themselves, they were very I think they just wanted to always make fun of me, make me feel uncomfortable, and I was not made or designed to do a desk job. There was great academically, like I was a good student, but I was not made for a desk job or to say, always wanted to do creative stuff. So I came back home and I told my father, I can't handle this. You throw me to the house, but I don't want to work this. So he's saying, okay, fine, you figure out what you want to do. And that time, I think you're very young compared to me, but that time there used to be a nightclub called Sellers in the Oberoi, and 1900s used to be at the Taj. And I think Aajka generation, they don't even party 1% of what we used to party that time. And I think that time there was no hierarchy. I remember Salman, Sangeeta Bijlani, everybody used to party together, in fact. And everybody used to wait on a Saturday to see, wow, who's wearing what. And it was like the creme la la creme crowd coming to Taj. So I've always called myself a Destiny's child because like I feel बोलते हैं ना बच्चा जब चांद के लिए मचलता है तो उसे चांद नहीं मिलता है बट मेरे केस में आई थिंक मुझे हमेशा चांद और चांद से ऊपर ही मिला है थैंक्स टू मम्मी डैडीज आशीर्वाद आई जस्ट वेंट एंड मेट सुनील शेट्टी आई वाज वेरी मुझे मेरे में गट्स बहुत है कि मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी से बात करने में वेरी कॉन्फिडेंट किड तो मैंने जाके सुनील से बात की सर हाई आई एम स्टाइलिस्ट एंड आई लव टू वर्क फॉर यू और तभी मिस्चिफ करके इसकी दुकान वाज द मोस्ट ट्रेंडिंग आज भी आप रीच कैरी में किसी को भी पूछो मिस्चिफ आई एम श्योर यू आल्सो ग्रोन फ्रॉम देयर दे हैड द बेस्ट ट्रेंडीस्ट क्लोथ्स एंड दे यूज्ड टू गो टू बैंकॉक टू गेट क्लोथ्स आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सुनील शेट्टी और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी तभी माना शेट्टी शी एंड मी बिकेम लाइक हॉट पैल्स एंड आई यूज्ड टू स्टाइल द होल स्टोर और मैंने उसका पूरा अवतार बदल दिया एंड दैट इज द टाइम दे स्टार्टेड डूइंग a lot of styling and everything. And I joined them for the styling where they did a movie, if you remember Tridev, Rajiv Rai. Yeah. So Rajiv Rai was a very good friend of Sunil Shetty and his partner Shabir Boxwala. And Sonam, if you remember his wife, who was the best looking girl naturally without any surgery, without doing anything. So we did Vishwatma, we did Tridev, where I helped bring the clothes and all that. Tabhi Anna Singh karke designer hai, Anna Singh, who used to do Jackie Shroff, Madhuri, she approached me. So she's saying, मेरे साथ भी आप आके करो. So I did Sajan with Madhuri. Okay. I did Manish Koralla's first movie Saudagar and Love Letter with Vivek Mishra and her. And then my father said, and I started becoming more and more flamboyant. उस ज़माने में भी I was not dressing the way I dress up like that. I used to dress up. I had like short Rahul Roy kind of hair that time. धीरे धीरे my hair started growing a little longer, whatever. And that is the time my mummy thought कि वो just थोड़ा बिगड़ रहा है because obviously सुनील शेट्टी के वहाँ मिस्chief plus मेरे जो कॉलेज था हम लोग हर रात को हर सैटरडे नाइट को 1900 जाना कॉफ़ी शॉप्स में जाना तभी if you remember 1900s was fire. समरकंद जो कॉफ़ी शॉप था इन सेलर के बाजू में ओबरॉय में और ताज का भी शामियाना जो था दैट वाज टॉक ऑफ द टाउन हमें हर साल तो मम्मी को लगता था कि ये बच्चा मेरा बिगड़ जाएगा तो इसको यहाँ से दूर भेज दो अमेरिका भेज दो मेरी मौसी अमेरिका में रहती है तो माई मम वन फाइन डे मेड मी मीट माई मासी एंड आई थॉट कि हाँ चलो जाते नो हाँ बिकॉज हम लोग बचपन में
वेकेशन के लिए गए थे, तो एक वो थोड़ा यू हैव दैट एक्साइटमेंट को वहाँ वहाँ मॉडर्न पना है ये वो, तो ऐसे चलो जाते हैं, एंड आई वेंट टू मायामी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देयर फैशन हाउस. Okay. And I used to do styling, and I used to handle the jewelry counter. They used to do tennis bracelets, 18 karat K jewelry, gold, diamond bracelets, diamond bangles, and all the designer high-end brands of makeup. जो उस ज़माने में किसी को मालूम ही नहीं था, Givenchy, Carolina Herrera, उस ज़माने में, talk about 30 years ago. तो I started loving it. Plus, I think, like I said, मेरा जो confident nature, मेरा nature बहुत ही friendly. I adjust with people. Yeah. I'm not like, oh, मेरे को यही चाहिए. I'm like, I may look a little divish, like you said, but I'm very adjusting. Plus, I'm very boring, if you know, कि I'm pure vegetarian. मैंने आज तक कभी शराब, सिगरेट नहीं पी है. मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया है. बट लाइक आई सेड, और समटाइम्स क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस. आप कोई 4 बार 5 बार टू टाटा करेगा, आप उसको इग्नोर ही करो तो वो कितना करेगा, वो भी थक जाएगा. So I used to be very shameless and not give a damn about them. बोलते हैं ना, हाथी अपनी सूंड ऊंची करके चलता है, उसको आजू बाजू कुत्ते भौंकते, कोई फर्क पड़ता भी ना ही पड़ना चाहिए. और मुझे कभी भी ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि हाय मुझे रात को पार्टी करना, मुझे ड्रिंक होना चाहिए, बिकॉज एंड दैट्स व्हाट मम लव्ड. बट उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा. सो दैट्स व्हाई शी पैक्ड मी ऑफ टू अमेरिका. And there I used to work full time. I used to do my makeup course in the morning from 7 a.m. to 2 p.m. And 3 p.m. to 7 p.m. was to work in my Masi's store, where we used to sell jewelry, we sell high-end makeup products, everything. Then from there I went to Jamaica also. I went to Orlando for jewelry shoots. I was very good at what I did. और 7 साल मैंने वहाँ काम किया. I did the Baywatch series, if you know. तभी Pamela Anderson थी और Brandy Rodriguez करके थी, who was the biggest stated woman, very famous that time. तो नसीब देखो कि कल क्या होने वाला हमें मालूम नहीं है. मैंने उनके साथ बेवॉच किया, और जब हम बॉम्बे 7 साल के बाद आए, तो वाशु भगनानी ने अपनी पहली पिक्चर रितेश देशमुख के साथ की थी, आउट ऑफ कंट्रोल, जिसमें उन्होंने ब्रैंडी रॉड्रिक्स को ही कास्ट किया था. तो उन्होंने उसको काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट रेकमेंड किया. तो बोलती नहीं, मैंने ओजस के साथ काम किया, ओजस आई थिंक इज इन इंडिया, अब ओजस की ला के दो. एंड लकली आई डिड द फुल फिल्म विथ हर. So which was a big hit. That movie had become quite a big hit, though it was, good songs, everything. And I was very hardworking. I think my appearance of my sexuality never came in from my hard work. Up till now, I've done more than 860 ad films. I've done hair commercial because, like I said, I'm the only Indian makeup artist who's trained for hair, makeup or styling, overall look. तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हुआ था. और व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई टू मॉडल. तो मैंने जब आई डिड माई 12th स्टैंड, उसके बाद 12वीं के बाद मैंने कभी मेरे डैड से 1 रुपया नहीं लिया. वो टॉक अबाउट बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट. वेल हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इट. मैंने 24 साल में अपना पहला घर खरीदा. मेरे मम्मी डैडी सेकंड फ्लोर पे रहते थे, चौपाटी पे, और मैंने तीसरे माले पे मम्मी डैडी के ऊपर ही थर्ड फ्लोर पे और एक घर खरीदा. तो लकली उनको ये भय नहीं था कि मेरा बच्चा, बिकॉज उनको था कि, और आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्कोहॉलिक. अब मुझे अभी भी रात को 2 बजे को लगे मेकअप आ रहा है, किसी का करना, आई विल रन टू वर्क बिकॉज आई लव वर्किंग. मुझे जब व्हेन आई एम डूइंग माई मेकअप है, व्हेन आई एम डूइंग माई वर्क, मुझे वो नशा ही अलग है. इनफैक्ट व्हेन आई एम नॉट वर्किंग, आई मे बी अ लिटिल डाउन, आई मे बी अ लिटिल डिप्रेस्ड, बट आई एम ऑलवेज ऑन अ वेरी हाई मोड व्हेन आई एम बिजी विथ माई वर्क. सो आई थिंक दैट समवेयर डाउन द लाइन हेल्प मी. तो मैंने काफ़ी एड्स की थी. एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका, आई केम ऑन अ हॉलीडे. 7 साल के बाद मम्मी ने बोला, अच्छा इसको बुला लो थोड़ा दिन छुट्टी के लिए. दैट कम फॉर अ 1 month वेकेशन. और तभी मालूम है, अमेरिका का बहुत था कि अमेरिका रिटर्न है, ये वो. एंड आई शो योर पेंटिंग, वन ऑफ माई फैंस इज डन अ पेंटिंग. मेरी पूरी जर्नी दिखाई है कि कैसे ये बच्चा टॉप किया ऐसे, देन हाउ आई वेंट अमेरिका, देन हाउ दे मेड मी साउंड लाइक अ फॉरेन रिटर्न. एंड आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक विद उर्मिला. तो सुरेश नटराजन की ऑफिस में एक फोटोग्राफर, उनका असिस्टेंट था. तो उन्होंने बोला, ओजस आर यू इंटरेस्टेड डूइंग मूवीज? ऐसे मैं तो अभी आई एम गोइंग बैक इन अ मंथ. सो यू मैड? ही सेइंग जस्ट जाके मिल के तो, व्हाट डू यू लूज? So I went to meet Urmila, and that time she used to live in Lokanwala in a duplex. And I remember वो staircase, and I was like, wow, ये तो कितनी अच्छी लगती है. And I thought, बहुत attitude देगी, whatever. She said, hi darling. I said, hi darling. So I said, I'd gone with my whole makeup bag, hair bag, everything. I said, you want a trial? She's saying, are you mad? आपको देख के मुझे ज़रूरत नहीं है कि trial लूँ, and you've come very highly recommended, so I don't need to do trial. And after 1 week, we're shooting this Hi Rama song. So I believe again in destiny. मेरी destiny's child क्यों घड़ी घड़ी I'm telling you that कि भाई मेरे पे आई थिंक कहीं ना कहीं एंजल्स शोल्डर पे थे, थैंक्स टू मम्मी डैड, बिकॉज माय मॉम वाज अ ब्रह्म कुमारी. तो मुझे सडनली आई वाज शूटिंग फॉर अ निरमा वॉशिंग पाउडर एड इन यूरोप विद मंदिरा बेदीज हस्बैंड राज. अभी वो गुजर गए. तो तभी हम लोग को मैसेज आता है, तभी तो मोबाइल नहीं थे, तो वी जस्ट गॉट अ मैसेज थ्रू एंड थ्रू के टेल ओजस टू कॉल बैक व्हेन शी कम. सो इन द नाइट आई कम बैक, और मुझे दूसरे दिन फ़ोन आता कि दूसरे दिन ही कोको कोला का ऐड ऐश्वर्या का है. And the production house that recommended my name. So
उसने भी मेरे बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना होगा, बिकॉज मैंने उसके पहले सुष्मिता के साथ भी काम किया था। तो इमेजिन ऐश्वर्या राय जैसी अगर मुझे बिना ट्रायल के लिए बुला सकती, तो आजकल आई लाफ, देयर आर लॉट ऑफ ब्राइड्स, आई मीन नहीं, लेकिन मुझे ट्रायल चाहिए, ट्रायल आपको फ्री में क्यों दूँ? जब मैं नई थी इस बिजनेस में, तभी मैंने ना उर्मिला ना ऐश्वर्या हुआ द टॉप ऑफ द गेम, उनको मुझे ट्रायल देने की जरूरत है। मैं आज आपको फ्री ट्रायल क्यों दूँ? पे मी फॉर अ ट्रायल इफ यू वांट टू डू अ ट्रायल। आप यू आर फ्रॉम द प्रोडक्शन, एवरीबडी पेज फॉर अ लुक टेस्ट, देयर इज नो फ्रीबीज। अच्छा, अगर मैं फ्री ट्रायल करूँगी तो बॉम्बे से लेकर अमेरिका तक, लंदन से अमेरिका पूरी लाइन लग जाएगी इधर आने के लिए। एंड आई एम नॉट हियर टू गिव एनीबडी फ्रीबीज, राइट? आई एम टैलेंटेड, आई एम ब्लडी कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क एंड आई एम ब्लडी गुड एट माई वर्क। तो लकली दैट एटीट्यूड कहीं ना कहीं मुझे काम आया मेरे। आई रिमेंबर आई डन लुक टेस्ट, बट तभी भी उस जमाने में भी लकली मुझे लुक टेस्ट के पैसे मिले। आई कम टू दैट। इक्विनॉक्स करके प्रोडक्शन हाउस है फेमस स्टूडियो में, जहाँ पे राम माधवानी करके डायरेक्टर जो सुष्मिता का कुछ वो बनाया हुआ, तो ही इज डन अ लॉट ऑफ एड्स विद मी, एंड ही वाज डूइंग अ वेरी बिग एड कैंपेन फॉर अस्मी ज्वेलरी, व्हिच आई हैड ऑलरेडी शॉट विद प्रियंका चोपड़ा वाज द मॉडल। और तभी प्रभु देवा करके कोई, प्रभु द फोटोग्राफर था बंगाली और जहाज, एंड आई हेटेड हिम because he was the biggest homophobia man. He was very homophobic. There are 2-3 photographers in this industry who have been homophobic, which I'm very against that. किस्मत हमेशा हमें एक मौका मिलता है लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का। तो लकीली राम सेट कि ठीक है आपको चाहिए, and राम और उसका पार्टनर से शुमांशु सिंह, हम लोग लुक टेस्ट कर लेते हैं। और हमने लुक टेस्ट किया, तो लुक टेस्ट इतना वावा वूम हुआ कि वो लड़की मेरे पास बाहों में आके रोई कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपके काम को डाउट किया, बिकॉज शी थिंक मेरी भी गलती थी कि जब आपने बीबी स्टाइल के, तभी आप बहुत नए नए मेकअप आर्टिस्ट हैं, सडनली आई डिडंट नो कि आपका काम इतना वाव हो गया है। एंड हम लोग ने पूरा एड कैंपेन किया एंड बिकेम अ बिग हिट फॉर हर। एंड उस जमाने से शी वर्क फॉर एवरी गुड थिंग, बी जॉगर्स पार्क, बी अ सॉन्ग अपीयरेंस, एवरी वे, इफ यू नो एट फिल्म वाला करके प्रोडक्शन हाउस है शशि कपूर के बेटे का, तो उसके साथ भी हम लोग ने एड्स की थी। दैट गॉन, आई रिमेंबर टू do an ad campaign. That time also I did a hair makeup and it was for an international brand and it created worldwide recall. फिर अभी भी हाल में हमने फैंस करके एक बहुत बड़ी कंपनी है फैंस आर्ट करके, बहुत फैंसी फैन, झूमर वाले फैंस, तो उसकी भी ऐड उनको, मतलब जब भी कुछ होता है, शी इज़ सच अ डार्लिंग, शी कॉल्स मी। इनफैक्ट शी मैड अ वेरी नाइस हस्बैंड, रुस्तम जी बिल्डर्स, तो शी इज़ पार्ट ऑफ द वाइफ, तो उन्होंने अपनी इवेंट में भी हमें बुलाया मेकअप क्लास करने के लिए। तो आई थिंक एक बॉन्डिंग बन जाता है कहीं ना कहीं। बट आई थिंक मेरी मम्मी हमेशा क्या बोलती थी कि आप कुछ, जैसे आप बोले थे पीआर करो, नेटवर्किंग करो, बट बाय द एंड ऑफ द डे योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम, आपका काम ही बोलता है। सो आई फेल्ट समवेयर डाउन द लाइन कि देखो आपका, लाइक रिसेंटली आई मेट somebody who knows them, she was saying that Rogers, he's in the dumps and look at where you are. I said that is karma. कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आज आप मेरे बारे में बुरा बोलो, मेरे को नीचा दिखाओ, कुछ गॉसिप करो, लेकिन कर्म है सच अ बिची सर्कल के आज मैं हूँ, कल आपकी बारी, परसों किसी और की बारी। तो अगर आप किसी का बुरा सोचो तो बुरा पहले आपका ही होता है। Absolutely. So I always believe in that because that's the way my mom has brought us up. And I guess, like, yes, in today's day and age, हमारे टाइम तो इतना इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया नहीं था, आज इतना जोर दिया जा रहा है सोशल मीडिया के लिए बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी, एवरीबडी वांट्स विजिबिलिटी। और आज इतने सारे मेकअप इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हर एक बिल्डिंग में एक मेकअप आर्टिस्ट पैदा हो गया। सो फॉर देम बेचारों के लिए सर्वाइव करना हैज बिकम टफ। So I guess the recently survival has become a little tough for the newcomers. But then I guess see competition हर एक business में, आपके business में, हमारे business में, channels में है, productions में है. So I guess that is, you have to believe in yourself. I think most important I feel आपके अंदर confidence होना चाहिए, एक कुछ करने की चाह होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, and you should worship what you do. अगर आप अपने काम को पूजा करते तो आपको काम मिलेगा। क्यों नहीं? आज मुझे 30 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, अभी भी मम्मी डैडी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद, काम मिल ही रहा है, राइट? और हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बट आई गेस यू हैव टू समवे डाउन द लाइन प्रूव योर वर्क। हमारे जैसे जो लड़के हैं, जो लड़की जैसा दिखना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत हू हा करते। व्हाट अबाउट गर्ल जो लड़का जैसी दिखती है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते लेस्बियन है? कितनी लड़कियां जो स्कूल से मर्दानी होती है, बॉयकट बाल वो ऐसी बुच होती है, तो उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल सकते, राइट? वहाँ हिम्मत है आपकी बोलने की? नहीं, बिकॉज वहाँ आपकी बोलती बंद हो जाती है, राइट? एंड एज लॉन्ग एज कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा है, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, एंड लुक एट द क्रिएटिव साइड ऑफ द पीपल, राइट? कोई किसी का कोई किसी के पास हाथ फैलाने, एंड देयर लेट मी टेल द ऑडियंस कि आप लोग जो हिजरा, मामू, गे, छक्का बोलते हो, तो आपको मालूम है छक्का क्या होता है? आपकी मम्मी को जाके जरा घर में पूछना, आपको बराबर भाषण देगी उसके बारे में। गेज और हिजड़ा के बीच में रात और दिन का फर्क होता है, ओके? Gays are the people who like boys and they like to look like girls like me, but we are not chakkas or hijras, just for your information, darling. And अगर आपको और information चाहिए तो मुझे DM करिए, आपको और DM में मिल जाएंगे information.
और आजकल आई थिंक एजुकेशन होने के बावजूद भी हैव सीन लाइक सम किड्स लाइक टू हैव फन, लाइक सम पीपल आर लिटिल बॉसी किड्स, बचपन देखो तो लड़कियों को भी परेशान करेंगे, गेस को भी परेशान, या कोई पैंसी बेचारा बच्चा, इफ यू सॉ रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में देखा था अभी हाल ही में, आई थिंक Yeah, this दिसंबर guy में ही committed कमिटेड suicide, सुसाइड exactly. बेचारा, बिकॉज लोगों ने उसको ट्रोल किया। आई मीन क्या फायदा किसी को ट्रोल करके, आपको क्या मिल रहा है? एंड ऑलवेज फील अगर आप किसी पे उंगली डाल रहे हो तो बाकी उंगली आपके ऊपर, अपने आप को पहले झांको, अपने आप को तो देखो, फिर दूसरों के बारे में बोलो, राइट? Exactly, exactly. सो आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड, बट अगेन लाइक आई फील कर्मा इज अ बिच। आज आप मेरे बारे में बोले, कल आपकी बारी आएगी, कोई भी बख्श नहीं सकता है। Yeah, yeah. दुनिया ऐसी घूम फिर के गोल है कि nobody is spared. Like that, they don't give a damn about your work, like for a workplace. There are so many guys जो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो हमारे जैसे वही गेज है, there are कितने मर्दाना ऐसे जो है जो बेचारा शादी कर लेते हैं। I have 2-3 Yeah, friends who married who look yeah, straighter than you, yeah, yeah. बट बीवी बच्चे हैं, बट उनको होमोसेक्सुअल टेन, उनको सिर्फ लड़के पसंद है। कि मेरे इंस्टाग्राम में भी कमेंट्स करते हैं ऐसे बच्चे को तो मार डालना चाहिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ एज एन ऑडियंस कि आपको गारंटी आपका बेटा या बेटी होमोसेक्सुअल या लेस्बियन नहीं पैदा होंगे बड़े होके, और क्या आप उसका गला दबा देंगे? नहीं। According to मुझे दोगलापन नहीं आते, जो मैं हूँ डार्लिंग, टेक इट और लीव इट, इट्स लाइक दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। absolutely, और आप मेरा घर नहीं चलाते, इट्स लाइक दैट, राइट? Right now, I'm absolutely. not liking any movies which are coming. I wish our producer directors start finding better script writers or some better concepts to come on. I feel it's become very blah, very boring. I think if the 80s and 90s we should see, there were lovely songs, Yeah, yeah, glamour. I absolutely. think that is what all Bollywood is all about. अगर आप Right, देखो right. विदेश में भी सब लोग करण जौहर की, यशराज की जो पिक्चर्स थी, गाने, शादियाँ, माल मस्ती, लव स्टोरी, शाहरुख खान की लव स्टोरीज, राजेश खन्ना के टाइम की सब, आई थिंक दोज वर सुपर हिट। बाकी आजकल व्हाट आर वी सीइंग? लाइक इवन शाहरुख दिल, व्हाट इज दैट, हम दिल वाले दुल्हनिया अभी तक चल रहा है थिएटर्स Yeah, में। yeah. सो वी आई थिंक दुनिया में एसेस इतनी परेशान, इतना स्ट्रेस, आप जब थिएटर जाते हो घर में तो आपको हंसना है, गाने सुन के मजाक करना है, यू वांट जूमो विद इट। पर आपको ये मारा मारी, ये प्रॉब्लम्स, ये वो सब ऑफ बीट जो सिनेमा हम लोग बोल रहे, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। एंड नंबर तो सब दिखाते बिकॉज ऑल पेड रिव्यूज आते हैं, वो 5 स्टार हो Sub गया, paid ये हुआ, तो reviews. आई डोंट बिलीव इन द नंबर गेम एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। This year I haven't done any film, but I've done a lot of appearances with actresses बी जानवी कपूर। और so basically हाल ही में मेरे मम्मी डैडी का डेथ हुआ है, 1.5 साल ही हुए हैं, and I was not prepared to take up Bollywood from the past 2 years. I've been a little, Down. still missing my parents and everything. Plus, I have my own academy because I teach hair and makeup in Yeah. Bandra. I have another flat where I teach hair and makeup. So I have that academy going great guns with from 14 years. Plus, I'm a very big makeup artist in the wedding faculty. If you see brides, I do all the top $1 billion weddings. Recently, I just did Mrs. Nita Ambani, which went viral. It's still at date, we have 8 million views. So I love teaching also because क्या हुआ था कि last 3-4 साल से taken a little back seat. We're doing a full film was concerned because A, budgets are always an issue. एंड प्लस काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लुक डिज़ाइन कर दीजिए, आप फोटोशूट के लिए आ जाइए, गाने के लिए, बाकी आप अपनी टीम को भेज दीजिए। So that somewhere down the line worked in my favor. They've done some songs in between with Katrina, with Deepika. But I think songs में क्या होता है, 4 दिन 10 दिन तक काम हो जाता है, बट फिल्म में क्या होता है, you're grilling for 85 days and 6 months and date postpone हो जाती है, and plus payments is an issue. I mean, I see a lot of time they think that they are indispensable. I'm sorry to your calling because my talent, robot picture जब हमने किया था, तो रोबोट में जो दिखी वो आज तक कोई भी पिक्चर में नहीं दिखी है। मोदी जी नीड्स टू पुट अ क्लॉज के हाउ डेयर फॉरेन आर्टिस्ट हमारे देश में आके इतना कमा सकते हैं, उनका टैक्सेशन कहाँ जाता है, Exactly. और उनको प्रमोट कौन करता है? एजेंसीज। तो एजेंसीज को कौन से हक से मिलता है ये सब? और एजेंसी मलाई खाती, मुझे आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, बट देयर ऑल दी बिग बिग एजेंसीज हु कॉल ऑल दीज फॉरेन आर्टिस्ट, दे टेक 35% फ्रॉम देम, और उनको एक रूम में आप देखो तो 6-6 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ऐसे भंगी की तरह, और जब आते हैं सेट पे तो दे बिहेव लाइक स्टार्स। बट दिस इज हाउ दे डू इट, और प्लस आई फील अगर मैं अपने देश में इतनी सक्सेस, तो मैं बाहर क्यों जाऊंगी काम करने? तो मानिए अपने देशों के सब एक्सपोर्ट रिजेक्ट है जो गधे की तरह हमारे देश में आते हैं, और हमारे देश की हीरोइन उनको पूछती हैं। बिकॉज क्या है कि लॉट ऑफ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द बॉम्बे मेकअप आर्टिस्ट, पहले जब इंडस्ट्री थी, एक हम गे मेकअप आर्टिस्ट होते थे और एक मराठी दादा मेकअप आर्टिस्ट थे। जो दादा मेकअप आर्टिस्ट होते थे उनका स्टाइलिंग बेचारों का बहुत ही नॉर्मल रेगुलर, बिकॉज उनको वो एक्सपोजर बेचारों को मिला नहीं है। और जो गे मेकअप आर्टिस्ट वो थोड़े ट्रेंडी मेकअप आर्टिस्ट को फैशन भी आता था, थोड़ी ग्लैमराइज करना वो भी सब आता था। प्लस हमारे जैसे जो सीखे भी कि हेयर मेकअप स्टाइलिंग करो, और जो मराठी दादा मेकअप आर्टिस्ट उनका विजन रिस्ट्रिक्टेड रहता था। तो व्हाट आई रियलाइज, हम देखते थे कि जब भी वही हीरोइन दादा मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएंगे नॉर्मल सस्ते बजट के लिए, और वो दादा जाते थे भी गधों के लिए, बिकॉज उनको सर्वाइवल चाहिए था। और जब एड मिलेगी तो फॉरेन मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएंगी, या एड एजेंसी वाला कोई मेकअप आर्टिस्ट बुलाएंगी, क्योंकि तभी उनको अलग दिखना है। सो दैट हायरकी यूज्ड टू बी देयर समवेयर डाउन द लाइन। और अभी क्या हो गया कि नाउ सम ऑफ द आर्टिस्ट एंड द
makeup artist and hairdresser have kind of gel so much with the actor that they become like a hen gang. They smoke up together, they party together, plus एक दूसरे की सबकी पॉइंट सबको मालूम है, बिहाइंड द स्क्रीन सब कुछ मालूम है, तो दे बिकम लाइक अ हैंड गैंग. आई फील वेरी बैड बिकॉज पहले हमारा यूनियन बहुत ही एक्टिव और वोकल था और मैं बहुत खुश थी तभी, बिकॉज पहले यूनियन फॉरेनर्स को अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन अभी ये जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज लाई हैं तो यूनियन बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और प्लस यूनियन को चुप करने के लिए उसके मुंह पे पैसा मारा जाता है. बट इट्स वेरी अनफेयर कि हमारी इंडियन आर्टिस्ट को काम नहीं मिल रहा और फॉरेनर्स इतना काम कर रहे हैं हमारे देश में, विच इज़ वेरी अनफेयर. बट देन इंडिया में पहले से ही मोह है फॉरेन का मोह, फॉरेन का मोह, फॉरेन की चॉकलेट, फॉरेन के कपड़े. तो आई थिंक टिल यू योरसेल्फ विल नॉट रिस्पेक्ट अनदर इंडियन, आई एम सॉरी, ये फॉरेनर्स तो ऑब्वियसली पहले भी ब्रिटिश ने आके रूल किया, ये लोग करेंगे ही करेंगे, राइट. हमारा मुझे एक दिखाइए हमारा देश का कौन सा मिकी कॉन्ट्रैक्टर जैसा भी फॉरेन में एक ऐड करके आया, नहीं, कुछ भी नहीं मिला उनको भी. कौन सी फॉरेन की ब्रांड ने उसको बुलाया कि हाँ भाई आप इंडिया के बहुत टॉप में यहाँ आके करो, नथिंग, जीरो. बट हमारे गधे लोग हैं जो फॉरेनर्स को यहाँ के भगवान बना देते हैं, राइट. आज से ही नहीं, आई एम टॉक अबाउट 25 ईयर्स से, अगर आप कोई लैक्मे की ऐड देखो, फॉरेन मॉडल को लेंगे, बिकॉज फॉरेन मॉडल गोरी चिकनी है, उसको बाल नहीं है, उसको पिंपल्स नहीं है, उसको पोज नहीं है, इसलिए उसको लेंगे. आज तक आप कोई भी कॉस्मेटिक ऐड देखो, सिर्फ फॉरेनर्स को ही लेते हो लोग. बीच में ऐसा दौर आ गया था कि हमारी इंडियन मॉडल्स के पास काम ही नहीं है, फॉरेन मॉडल्स के पास ही काम है, बॉयज़ या गर्ल्स. प्लस दे आर चीपर, लाइक आई सेड, एंड ऑल्सो द एजेंसी चार्ज 35%. प्लस वो लोग कैरेक्टरलेस है, वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है, विच इज़ आई एम वेरी वोकल अबाउट ऑन द कैमरा टू से दैट, विच इज़ ट्रू. हमारी लड़कियाँ इतनी बिंदास नहीं, बिकॉज हमारे देश की सभ्यता कहीं ना कहीं अभी भी टिकी हुई है, लेकिन फॉरेनर्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड सिटिंग ऑन हुज लैप इज दैट दे गेटिंग वर्क. प्लस वो लोग को मालूम हम लोग गोरी चमड़ी, तो हमारे इंडियंस बेवकूफ़ गधे गोरी चमड़ी के दीवाने, उनका पाँव भी धो के पी लेंगे वो लोग. तो अभी भी ये कहीं ना कहीं गोरी चमड़ी का जो भूत, आई थिंक वी रियली नीड टू रिमूव इट. आई थिंक मिस्टर मोदी इज ऑल्सो बीन क्वाइट वोकल. अभी भी आज 24th सेंचुरी में भी सासू माँ चाहती कि मेरा बेटा भला काला कालूटा गोविंदा हो, लेकिन बहू उनको ऐश्वर्या राय जैसी गोरी चिकनी चाहिए. You know how much of Fair and Lovely is being sold in the South till date, बेचारा, because अभी भी उनको लगता है हम गोरे. I get so many DM, मैम what do you? I said, darling, I was born white. I said, मेरा एक एक बॉडी का शरीर देख लो, मैंने कुछ किया नहीं है. बट या आपके माँ बाप की जीन्स अच्छे हैं, आप दे गोरा, बट ज़रूरी नहीं कि आप गोरे हो तो ही अच्छे हो. तो which I think today in school they need to give that education system, especially in the South or even everywhere else, because I feel poor thing, कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है. आप देखो हमारी महाराष्ट्री वेमेन बैंक में जो काम कर कितनी अच्छी लगती है, भले वो लोग सांवली से, लेकिन वो लोग का अपना गजरा होता है, बाल टिप टॉप होते हैं, साड़ी एकदम टिप टॉप. आई यूज्ड टू ऑलवेज लव देम एंड रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे लुक वेरी नाइस. सो देयर इज सो मच ब्यूटी. हमारी स्मिता पाटिल जो गुजर गई, उसके जैसी खूबसूरत आखिर मैंने हीरोइन नहीं देखी है. चित्रांगना देखो, डार्क है, बट शी इज सो सेक्सी लुकिंग. सो आई फील मलाइका इज डस्की बट शी लुक्स सो हॉट. सो आई डोंट बिलीव, इनफैक्ट वी सी ऐश्वर्या धूम में और रोबोट में जब डस्की बनाएगी तो और भी खूबसूरत लगी थी. कभी कभी गोरे में इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी वो रोबोट में लगी है, बिकॉज वी मेड हर सल्ट्री सेक्स गॉडेस. सो आई फील ये गोरापन का भूत हमारे देश से कहीं ना कहीं निकालने की ज़रूरत है. लोग बचपन से बॉलीवुड से प्रभावित. आई हैव अ चाइल्ड हु बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मुमताज द एक्ट्रेस. तभी हेलन के गाने, मुमताज के गाने देख देख आई कम एंड डू दैट लाइनर, आई टू दैट ब्लशर. मैं मम्मी का मेकअप करती, मेरी बहन का करती, बिकॉज वी ऑलवेज ग्रोन अप विद दैट एनामर ऑफ बॉलीवुड, दैट होल, because Bollywood is very larger than life. और गाने उस ज़माने के, if you see like in the 70s song, I till date love. If you see each and every film of Urmila, if you see दौड़, जानब से मस्त, क्या गाने हैं वो गाने. We used to go to the theater and watch. अभी तो we want to fast forward most of the songs because they're so boring. Sometimes I see movies, I keep on fast forwarding and say, because I can't relate to that anymore. So I feel, though we talk about being this modern kind of a 24th century country, and Mr. Modi's put us on the international map thanks to him, but it's really sad and really unfortunate कि अभी भी लोग गोरे मेकअप आर्टिस्ट की पूजा करते, गोरे मॉडल्स की पूजा करते. अभी भी आज देखो एडवर्टाइजिंग में पैंटलून्स की ऐड देखो, सेंट्रल की ऐड देखो, कहीं भी तो वो लोग फॉरेन का ही लेंगे, या फिर बच्चा कुचा बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेते. तो इंडियन मॉडल के पास काम कहाँ है एक्सेप्ट वॉकिंग द रैम्प. रैम्प में भी कितनी फॉरेनर्स घुस गई एंड दे चीपर. अब कितने लोगों को बेरोजगार करके कितने लोगों की रोजी रोटी आप छीन रहे हो इस बारे में. Even we talk about makeup artists, hairstyles. There are so many fantastic Indian makeup artists and hairstyles. Today, if you see Alia Bhatt's hairdresser is Indian, she's superb with her hair. It's a bitter truth, but it's a fact that everywhere people want commissions. And if you want to work with an actress, you have to be the best friends with a manager, otherwise you don't belong there, like that, which is true somewhere down the line, because obviously, they're all the time handling their work, they know the ins and outs, so you cannot take panga with them, obviously. So it's like they need an incentive to call you.
And every manager has like a list of 5 to 6 makeup artists which they keep on shuffling with that actor. And if you're a villain like me, then you're out of the picture. It's like that. Okay. But today, I think certain managers are fantastic, like Katrina's manager, certain production houses who are handling managers. They're very good. Before you start your makeup, your check is there. Like even a newcomer like Julia Vatur, I did a song with her, and I remember her manager is Salman Khan's company is handling it. My check was ready before we started makeup, and it made me feel so good. I was working from 7 a.m. to the next day 7 a.m. Whereas आप foreigners की बात करें तो foreigners की agency पहले से ही पैसा ले लेती है. वो थोड़ी बोलेंगे हाँ बाद में देंगे पैसा चलेगा. And now corporates have come into every production house in Bollywood. So it's become a little more professional, but still I've been told that people are biased with foreigners than Indians, right? Yeah. और हमारे इंडियंस जैसे ही घबरा जाते कि हाय बाप रे हम बोलेंगे कुछ तो हमको नेक्स्ट टाइम हीरोइन नहीं बुलाएगी. बट आप ऐसा सोचते क्यों हो? आपका काम अच्छा था, कोई जक मार के बुलाएगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. लाइक ऑलवेज फील योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स. एंड नहीं बुलाएगी तो गॉड इज वेरी काइंड. एक दरवाजा बंद तो 100 दरवाजे और खुल जाते हैं. Like I gave you my example that I had been taken a backseat from Bollywood to my parents' health, and then my father was a heart patient, my mother had osteoporosis. So that's why I bought this lovely house over here in Lodha Voltas, and I could not take back-to-back outdoors, you know. But then my bridal makeup shot up so well. But again, bride में भी यही है कि वाह ओ कौन सी हीरोइन का मेकअप करते हैं तो हम आपको बुलाते हैं, जानवी का करते हैं, फलाने का करते हैं. So you need to balance that out, and that's why I think today's makeup artists and whoever are newcomers, आप हंसोगे मेरे पे, but I do a lot of seminars, like just now said in Hyderabad, में seminar I did last time in Baroda. तो मेरे साथ stage पे there was a reputed actress. तो वो makeup artist give 50,000 rupees for one selfie. तो लोग इतने बेचारे दीवाने because Bollywood has become such a big thing कि भाई people want to know अच्छा आपने छोटे शहर हो या गांव हो या बॉम्बे हो या even NRIs abroad. Today, like I had an NR bride I'm going for just now. I was showing her the bitter truth of reality. I said आप देख तो कि जो मेकअप इतना सारा एडिटिंग करके फिर डालते हैं और ज़रूरी थोड़ी कि आप हीरोइन का मेकअप करते तो ही अच्छा करते. कह रहा सो मेनी दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट हु डोंट डू एक्ट्रेस बट देयर वर्क इज सो गुड. इवन इफ इन नॉर्थ इंडिया यू सी देयर सो मच ऑफ टैलेंट. तो ज़रूरी नहीं कि बिकॉज आप बॉलीवुड एक्ट्रेस करते हो या आप में टैलेंट बाकी आप में नहीं है. देयर सो मेनी डिजाइनर्स हु मे नॉट बी डूइंग सो मच ऑफ बॉलीवुड बट दे डू मोर ऑफ couture or fashion week or regular bridal, but that doesn't mean their work is bad. So like I'm saying कि अगर आपका काम अच्छा है तो दुनिया आएगी. बट ब्राइड्स भी जो होती है वो भी डिज़ाइनर के पास कब जाती जब उन्होंने देखा मैगजीन में या इंस्टाग्राम में फलानी एक्ट्रेस ने पहना है कि नहीं. सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन बॉलीवुड एनआरआईज हो फॉरेन में या इंडिया में कहीं भी हो, लोग बहुत ही हमारे इंडियन बेसिकली दे वेरी इन्फ्लुएंस, बहुत ही प्रभावित ब्लाइंडली हो गए हैं. ज़रूरी थोड़ी कि अगर हीरोइन ने पहना है तो ही वो ड्रेस डिज़ाइनर अच्छा है. और हीरोइन तो फ्री में पहन के जाती है. वो आपको मालूम होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि जब हीरोइन पहनती है. I think the जनता को they need to have a know-how. If they're behaving so dumb, then well, God help them. But they should know कि all that glitters is not gold, Exactly, right? There are so absolutely. many designers who are so fantastic, but poor thing they don't get their due because they don't act like Bollywood. Yeah. But that's how it's become. Everything is very cutthroat, very in the face. Touchwood with me, I would always say thanks to all my Bollywood actors. And I think there's not a single actress from the yesteryears till today who's not worked with me. Like as I started with, Urmila to Aishwarya to Deepika to Sonam, Katrina, Alia, Anushka, Jacqueline, you beat all you name it. Touchwood with me, it's been very nice because they have always come to me because they've heard of me. Yeah. Like I remember when I did the first film of Jacqueline called Aladdin, I was doing fashion also that time. That time I was doing Kangna one day I'm doing Priyanka, and one day I'm doing Mugdha Godse because Mugdha is the one who actually brought me on that project. Okay. So there were some days when Priyanka's makeup was not what I'm doing, or some days when Kangna's makeup was not, and that's where I met Maria Ji also. But I guess if you're good at your work, everything happens. And to that, I would love to take credit for something. कि अगर आपके, like I was saying, I'm a confident child from childhood, बेचारे ऐसे talented makeup है जिसमें talent फूट फूट के लेकिन उनमें वो confidence है, उसमें वो drive नहीं है. They're not all out social media और trendy का उनको वो दिखावाबाजी बेचारों को नहीं आता है. So coming to that, I remember I'd worked with everybody, like I said, Raveena Tandon, Mahima Chaudhary, शिल्पा शेट्टी, पूजा बाजू उस दौर में सब. और मलाइका मेरे साथ कभी काम नहीं करी थी. So I used to that time watch this show called MTV Grind on Sundays. Remember international music videos and that dance and that guy rating on the pool side. I saw me feel, साला सबका काम क्या इसका क्यों नहीं आया? And suddenly next I got a call from Optimistic Films, Mr. Sanjeev Sharma, if you heard of. He does all the reality shows and dance reality, and he used to also have a company called Palette Company where he used to do ads. तो मैंने उनके साथ हर एक ऐड की है. अमृता राव की भी पहली ऐड मैंने उनके साथ की है. तो ही कॉल मी सिंह गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ ये है कि हमें मलाइका के साथ दम पान मसाला का ऐड मिला है विथ हर एंड दिवाकर. बट द बैड न्यूज़ इज शी वांट्स हर ओन मेकअप आर्टिस्ट
I'm like, ठीक है, but at least I used to do costumes also, like I told you. Yeah, So yeah. he's saying, we'd like you to style her whole look, be it her costume, her makeup look, everything. आप करोगे ऐसे? हाँ करेंगे, no problem. एंड मुझे कहीं ना ये था कि अगर वो मुझे एक बार मिलेगी तो मेरे से प्रभावित होगी एंड शी हैड हर्ड अबाउट मी Yeah. बिकॉज शी सीन ऑल ऑफ उर्मिला सो ग्लैमरस काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड आई रिमेंबर दैट टाइम हम लोग फिल्म फेयर अवार्ड स्टार तो एवरीबडी सो वांटेड टू नो कौन आया ईशा कोप्पिकर के लिए, कौन आया उर्मिला के लिए, सो दे यूज्ड टू आल्सो स्टार्ट कॉलिंग. And I went for her interview, I mean, for a meeting with her. I took her fittings measurement. She didn't open her mouth about makeup. Even I had my ego too high. I said, you, I'm not going to talk about makeup. And I did her styling, everything. 2 दिन में ट्रायल होके तीसरे दिन मुकेश में शूट है 3 दिन का. And cut to her makeup artist, hairdresser, did the whole look and everything. And हम लोग shooting floor पे हैं. And Mr. Anil Mehta, if you know him, he's the most senior, most cameraman. He's saying, oh, just मजा. He's saying, oh, just मजा नहीं आया. I said, darling, मैंने नहीं किया, इसलिए मजा नहीं आया. I said, उसकी टीम है, उसको बोलो जाके. He's saying, नहीं नहीं, आप जाके बोलो, मेरे में नहीं उसके मुंह लगने के लिए. So we go into the makeup room at 12 o'clock, and I said, the makeup artist needs to do a little, contouring in your eye, give a little more glow, or bounce thoda baal mein. And some hairdresser come, I can't remember her name, and she hated the sight of me. And I remember that in Bollywood, when I entered, I was the only makeup artist during my era who used to do hair, makeup, and styling. Okay. And I always used to feel that girls used to not do a very good blow dry because they were not trained. That's how, bichare. So I used to be always on top of my game. So उसको थोड़ा गुस्सा आ गया. मैं like saying, oh, just you know, why don't you do it? I said, ठीक है, clean your face, I'll wash your whole face and read. And I redid her hair and makeup, and we went on the set. And she fell in love with the makeup. Everybody fell in love, and she packed her makeup artist at home. So that's when Sanjeev came and told me. और उसके बाद एक रवि करके assistant producer था. He said, just मैंने आपको बोला था कि आपकी makeup bag गाड़ी में है ना. I said, हाँ. He said, मैंने आपको बोला था, you never know when destiny strikes. And look at God and look at my parents' blessing that it happened. But I feel because when we think positive, आजकल लोग manifestation अभी बात करते हैं. My mom has taught me this from childhood as a Brahma Kumari कि always try to be positive. हम लोग एग्जाम भी देने जाते हैं तो अगर हम पॉजिटिवली जाएंगे तो अच्छी मार्क्स आएंगे, लेकिन हम लोग नेगेटिव सोचते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. So I feel that's a very big USP one should have. Even if you know there are some reservations of your work or your style has, but you should go all out and make a big noise about it. और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना तो जो दिखता है वही बिकता है. कितने लोग शूशा करते हैं इंस्टाग्राम में, होता कुछ नहीं लेकिन दिखावा बाजी तो इतना. वो सडनली एक गाड़ी ली तो उसमें डाल दी, देखो मैंने मर्सिडीज ली, मैंने BMW. We born and brought up, gone to school in a Mercedes car, but we've never done all this drama. And we find it very fake also, to be very honest. Yeah. But then this is what today's day and age is. And I think जनता को मालूम है कि बीच में हाल ही में पेरिस फैशन वीक हुआ था, जहाँ इन्फ्लुएंसर्स जाके वॉक भी नहीं किया था, खाली they were sitting on the front row, लोगों को मेकअप हेयर किया था. They had to pay their own money. They had to fly their own flight. They had to pay for their stylist for their makeup hair, and they had to be on the front row to show हम लोग गए थे. But I'm sorry that all paid promotion. तो स्टार्टिंग में जब वो इन्फ्लुएंसिंग करते तो दे, अगर आप देखो तो जितनी भी टॉप इन्फ्लुएंसर सब पैसे वाली है ना, बिकॉज उनके पास पूरा दिन एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर है. आज नॉर्मल जनता बेचारी, नॉर्मल आम मिडिल क्लास फैमिली वाली इन्फ्लुएंसर बनेगी, उसके पास कहाँ से पैसा है पूरा दिन में मेकअप पहनूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, ये स्टाइल मारूँ, ये इन्फ्लुएंस का लिखूँ. सो दिस ओनली फॉर पीपल हु हैव मनी. बोलते हैं ना पैसा ही पैसे को मल्टीप्लाई करता है. सो इट्स ऑल शूशा. Plus, you can't just blindly follow fashion. What works for you may not work for the other person or the third person. Absolutely. And who are they to dictate to you fashion? To be very honest. Exactly. Like today, if a bride also wants to go, she will meet up Manish Malhotra personally to decide what she wants to wear. She's not going to be influenced by an influencer and go and buy it. But today, it's the trending, kind of a feel. But I feel all these trends are there. After a while, they're all going to, go down because everything is just hyped up. But I think there's a limit to being hyped so much, right? I think social media, if you don't take it too seriously, is great. Because I think somewhere down the line it also helps a lot of newer brands to connect with the audience. Because हर एक जन के पास पैसा नहीं होता है कि वो लोग ad agency बुला के बड़ी बड़ी ads बनाए, hoarding shoot करे, whatever. Like recently I just collaborated with somebody for a hairband brand, and she was so loving and so caring. I charged her a very reasonable amount. I did a reel for her. People have started buying her hairband. So I'm somewhere down there, I'm very happy that she connected with me and she's given me so many blessings. And today, let's face it, we all survive and bless because you never know kiski dua kab kaam aaye. And I feel it's very nice for newer people or newer makeup artists who were earlier not noticed. But they get a little boggled about the pressure of social media, the competitiveness. Because like I feel now there are trillions, not millions, there are trillions of makeup artists, trillions of hairstylists, trillions of costume stylists, designers, influencers, whatever you call it. So as long as it doesn't go to your head positively or negatively, like a lot of people start thinking too high about themselves, or some people are getting very insecure. So I feel you have to find a fine balance about it because you cannot
Like even in earlier days, like see, so many people get influenced by Bollywood stars. कि मुझे गोरा दिखना, मुझे ऐसा दिख. But I guess you have to love yourself when you wake up in the mirror. And nobody can look like nobody. Let's face it. Even a doctor cannot make you look like somebody, or a makeup artist cannot exactly replicate you to be your fashion icon or your Bollywood celebrity. So I feel till you start don't loving yourself and feeling that confidence yourself, how are you going to grow? Today, if I'm going to be worried about what my peers are doing, or like a lot of people say, आपने ये makeup वर्क नहीं देखा, so you think मेरे पास इतनी फुर्सत है कि फलाने makeup ये क्या डाला, like or you said some video. I don't have that kind of time because when I come home, I have so much of other things to do. So कौन decide करता है? जनता ही decide करती है. So to please the janta, they have to go to these extreme levels. And plus, now science has evolved so much that there's so much more facilities where you can groom yourself to look better. काफ़ी लोग I went recently for some doormats thing कि अगर आप लेजी और आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, वहाँ सो जाओ तो पूरा वो मशीन आपको लगा दे, पूरा वर्कआउट एक एक बॉडी पार्ट हो जाता है. फील दैट यू ड्रेन योर होल बॉडी एंड स्वेट डाउन एंड लुक मोर चिज्ड ऑन योर फेस, स्टमक एवरीवेयर. तो ऐसे तो लाइन लग रही वहाँ पे. वी वर टॉक अबाउट सोशल मीडिया. आई थिंक पहले इतना प्रेशर दिखने के लिए नहीं था जितना अभी है. अब गोरेपन की बात करें तो देखो आप, एसएमईज लड़कियां हैं, उनको पहले जॉब मिल जाता है सैलॉन्स में, वेट्रेसेस का रेस, बिकॉज वो लोग गोरी हैं, दुबली, उनकी जीन्स ऐसे, यू नो दे लुक वेरी टिप एंड टॉप. प्लस दे स्पीक लिटिल इंग्लिश. वेर हमारी बेचारी महाराष्ट्र में होते हैं तो वो बेचारी सांवली हो जाती है, उनका फिगर इतना अच्छा है, तो उनको बेचारों भले उन्होंने इतना पढ़ाई करके सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास आए, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, एसएमईज को मिल जाती. क्यों? बिकॉज वो गोरी चिकनी है. तो अभी भी हमारे देश में 2024 में भी गोरा दिखने के ऊपर कितना प्रेशर है. तो फिर क्या करेगी बेचारी? एक्टर हो या कोई जनता जाएगी ना ग्लूटा. योर टॉक अबाउट एक्ट्रेसेस. आई नो देयर आर some ladies who take their daughters 18-year-old to go start getting fairness injection, botox पहले से कहा ताकि मेरी बेटी जब 24 साल की शादी के लायक हो तो चेहरा टाइट हो, स्लिम रिम हो, गोरी हो, नहीं तो शादी नहीं होगी. मेकअप के बिना तो चलता ही नहीं है. बट येस, इट बिकम्स ईजियर फॉर अ मेकअप आर्ट. अगर लाइक आई गिव एन एग्जांपल, समथिंग आपकी बीवी की शादी है तो हम उसको मिलने आते तो ऑब्वियसली आप उसको पहली बार घर में देखने जाते तो वो नॉर्मल दिखती है, लेकिन शादी के 4 दिन पहले देखो तो उससे 50 ब्यूटी ट्रीटमेंट करी, फेशियल ब्लीच किया, स्किन पर, तो तभी वो अच्छी लगती है. फिर शादी के बाद 2 महीने के बाद उसके घर में जाओ और घंटी बजे तो आपको समझ नहीं आता था कि वो ब्राइड है कि नौकरानी है, बिकॉज शी लेट गो ऑफ herself, राइट, विच इज अ फैक्ट. सो आई गिव एन एग्जाम्पल. जब तक आप जूता पॉलिश करोगे तो जूता चमकीला, उसको पॉलिश करना बंद करोगे तो वैसा ही वैसा हो जाएगा. आप पेडिक्योर जब तक कराओगे आपकी एड़ी स्मूथ एंड सिल्की लगे, जब आप बंद करोगे तो फटी हुई एड़ी कोई छूने भी नहीं देगा. इट विल बी लाइक रफ लाइक अ स्टोन. सो एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस, राइट. अगर आप हाउस में डस्टिंग ले तो हाउस चमकेगा. आपने बोला हुआ आपका घर इतना, घर में एक हफ्ता घर पे ध्यान लुक लाइक अ कबाड़ खाना. सो एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस टुडे. एंड प्लस लाइक आई सेड, टुडे इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. जो दिखता है वही बिकता है. तो अगर आपको ये रेस में आगे बढ़ना है जिंदगी में, बीट योर करियर, लाइक आई टोल्ड यू, आप सिर्फ बॉलीवुड की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. People who have best of circuits, best of everything, but because they don't have the fair color or they don't have the chamak chalu figure, they don't get their work. My one very good friend, she was working in a bank at Standard Chartered, and she wanted a promotion in Dubai. She got rejected because she's dusky. They want somebody who's fair, though she's like a top of her game. But poor thing, she got rejected. So till date, people want somebody who's fair and lovely. इसलिए तो आज तक fair and lovely tube बिक रही है, fair and lovely ads चल रही है. So many fair, creme brands have come up. So much of nonsense going on. Even you get vitamins with glutathione. You get these vitamin drinks. मालूम है effervescent water की गोली में आप energy के लिए, उसमें भी आज आ गया. So people are influenced by it, ना. And people are ready to pay any price बेचारा to become a little गोरा, because उनको लगता है हम गोरे दिखेंगे तो हमको उसका work opportunities ज़्यादा मिलेगा, because it has its perk. Let's face it, whether you like it or not. अगर आप गोरे तो आपको काम और मिलता है थोड़ा, और आप सांवले तो आपको बैक सीट में रहना पड़ता है. तो ये तो कभी भी बदलने वाला नहीं, आज से 100 साल के बाद भी नहीं बदलने वाला है. So I feel somewhere down the line, parents have to give the children a little free way to discover what they like. Like I said, I'm a chartered accountant, but I finally did what I wanted to do. And it's only thanks to my parents, they allowed me to and support me. That's why today I'm talking to you. Otherwise, I don't know where would I be, because I would have been confused. So I feel even today's parents की हमें गुजारिश है कि अपने बच्चे को किस चीज़ का शौक है, फुटबॉल खेलने का है या कुछ और करने. आई थिंक ऑलवेज गिव देम दैट. उनको एनकरेज करिए, ना कि आप हमेशा नहीं पढ़ाई करो, ये करो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो. अगर उसमें नहीं वो काबिलियत है, उसको नहीं पढ़ना है, डॉक्टर बेचारा क्यों पढ़ेगा. लाइक आई हेटेड मैथ्स माई सेल्फ. I don't know how I became a CA, because I used to slog thanks to my parents. But one fine day it was like a revolt. I said, Papa, I can't take any more of this. I'm fed up. I'm not made for a desk job like this. So I feel once your parents start supporting you, and when you get that love at home, you don't need outsiders. I'll be like, a lot of people, because they're so insecure, so they want to go on camera and show, ye hu, because maybe in that childhood they've not got that attention. Yeah.
Let's face it. But if you always got that and you're a normal, upbringing child who's had a great time and who's been a confident child, you will never go all out crazy. Please love yourself. Yes, आप सोशल मीडिया देख के अपनी बॉलीवुड को पूजिए, हीरोइंस को, लेकिन आप अपने आप को पहले पूजिए, बिकॉज आई थिंक अगर आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, तो दुनिया आपकी दास होगी। बाकी सिर्फ मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया था ये, और हमेशा मैं याद रखती हूँ चीज़, कि मम्मी हमेशा बोलती कि जैसे आपने बोला नेटवर्किंग के लोगों की मस्का पर, अरे यार काम दो, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि दो हाथ वाला इंसान होता है, तो दो हाथ वाला इंसान की पूजा करो और पटपटाओ कि काम दे सच, आप 1000 हाथ वाला कौन होता है, भगवान, उसकी पूजा करो। So my mother always taught me कि आपको अगर कोई भी चीज़ चुभती है या something is disturbed, you wake up at 3:30 a.m., which is the Amrit Vela time. Trust me, I till date do that, because there are some days when I don't go through a great day, or sometimes certain things you want them to happen. So I feel जब आप सच्चे दिल से ऊपर वाली जो 1000 हाथ वाले, उससे आप दुआ मांगे, तो काम पट 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 आ जाता है। दो हाथ वाला कभी देगा इतना मस्का मारेगा, कभी देगा तो कमीशन भी रखेगा, वो तो कोई कमीशन नहीं रखेगा ऊपर वाला। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, और आप जिससे भी पूछते, अल्लाह हो, Jesus Christ हो या भगवान हो, I think when you pray with dignity and ask for what you want, He is always there to give you. Hey, this is your favorite makeup artist, Ojus Rajani, and you're watching me on Bollywood Now.